تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جاہلیت کی باتیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس جو جاہلیت کی باتیں تھیں، وہ آج بھی ہیں دنیا میں، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ شہروں میں، کسی ملک میں، کسی جگہ پر ایسے ہے۔ تو ہمیں ان جاہلیت کی باتوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں شرح میں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو ابھی سعودی عربیہ کے بارے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں بولتا ہوں، تو ایک دو آیت پڑھیے تو تیلگو میں، تاکہ جو ابھی بات بتانے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں پوری آئے گی۔ سورہ الاعراف کی آیت کھولی، جو 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 170 پر 5 اور 170 پر 6 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మేము మా ఆయతులను ప్రసాదించగా వాటి నుండి తిరిగిపోయిన వాని వృత్తాంతాన్ని వారికి చదివి వినిపించు. చివరకు శైతాను అతని వెంటపడగా అతడు మార్గభ్రష్టులలో చేరిపోయాడు. 176. మేము గనక తలిస్తే ఈ ఆయతుల వల్ల అతనికి ఔన్నత్యాన్ని ప్రసాదించి ఉండేవారం, కానీ అతనేమో ప్రపంచం వైపుకు మొగ్గాడు, తన మనోవాంఛలనే అనుసరించసాగాడు. అందువల్ల అతని పరిస్థితి కుక్క పరిస్థితిలా తయారైంది. నువ్వు దాన్ని తరిమినా అది నాలుక బయట పెట్టి రొప్పుతూ ఉంటుంది, దాని మానాన వదిలిపెట్టినా నాలుక తీసి రొప్పుతూనే ఉంటుంది. మా ఆయతులను, అసత్యాలను త్రోసిపుచ్చిన వారి పరిస్థితి కూడా ఇలాంటిదే. కాబట్టి నువ్వు వారికి ఈ గాథలను వినిపిస్తూ ఉండు, బహుశా అలాగైనా వారు యోచన చేస్తారేమో. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم کو نہ بنانا، آمین۔ کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کی خبر پڑھ کر کے سنائیے، اس کے بارے میں جس کو میں نے علم دیا تھا، کتاب کا علم دیا تھا۔ پھر کیا کیا اس نے؟ اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا۔ تو شیطان اس کے پیچھے چلے کہ نہیں چلے؟ خواہش کے پیچھے پڑ گیا وہ آدمی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، میں اس کو بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا، اس کی مثال جو اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، کتے کی مثال ہے، کتے کی طرح ہے، کیونکہ اس کو بوجھ ڈالیے پھر بھی ہانپے گا، چھوڑ دیجئے پھر بھی ہانپے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ میں چاہتا تو انہی آیت کے ذریعے سے، وہ جو علم میں نے دیا تھا اسی کے ذریعے سے بلندی دیتا، لیکن اس نے کیا سمجھا، زمین پر ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا کو ترجیح دے دیا، دنیا کو ترجیح دے دیا، اسی وجہ سے خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ خواہش پرستی بہت خطرناک بات ہے، خواہش پرستی بہت خطرناک بات ہے۔ ایک طرف کتاب اور سنت کی باتیں ہوتی ہے، اور ایک طرف دل جیسے چاہتا ہے وہ یہی خواہش پرستی ہے، اور اتنی بری مثال پورے قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں، اتنی بری مثال پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو خواہش پرستوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک دیا ہے، اور آپ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر جب پڑھیں گے تو اس میں تقریباً 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک نام جو ہے، ایک نام جیسے کہ
امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ امیہ بن ابی السلط کا نام آتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک بات آتی ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ جو امیہ بن ابی السلط تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. آپ اس کے بارے میں پڑھیے، اس آدمی کے بارے میں نام یاد رکھیے، امیہ بن ابی السلط، اس کے بارے میں آپ پڑھیے، آپ کو تعجب ہوگا. اس آدمی کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اس کو تورات کا انجیل کا علم تھا، اور تورات اور انجیل میں اس نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہوگی. بلکہ یہود اور نصارہ کے عالموں کے پاس جاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، اور لوگوں کو آخرت کی باتیں بولتا تھا، ایک اللہ کی باتیں بولتا تھا، شرک سے دور تھا. بلکہ اس کو کہتے تھے کہ یہ تو حنفیت پر ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے پر ہے، شرک سے دور لوگوں کو کرنا اور آخرت کی باتیں کرنا یہ سب کرتا تھا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو ملاقات بھی کیا، پہچان بھی گیا، لیکن ایمان نہیں لایا. کیوں؟ یہاں تک کہ آپ بخاری کے اندر بھی اس کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ شعر مجھ کو سناؤ، شعر، اور کہتے تھے کہ امیہ بن ابی السلط بالکل اسلام قبول کرنے ہی والا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، امیہ بن ابی السلط اسلام قبول کرنے ہی والا تھا، لیکن اسلام نہیں قبول نہیں کیا. بلکہ کچھ ایسے دیکھ کر کہ اتنا پڑھ کے ایسا دماغ ہو گیا تھا کہ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے، یہ سمجھا کہ اگر کوئی نبی بنیں گے تو میں ہی وہ نبی ہوں، اگر کوئی نبی بننے والے ہیں تو میں ہی وہ نبی ہوں. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گیا، لیکن وہ جو اندر خواہش تھی اس کی، وہ اس چیز نے ایمان لانے سے روک دیا، اور اتنے بڑے فضیلت سے وہ محروم ہو گیا، علم رہنے کے باوجود بھی. لیکن آپ دیکھیں اسی کے مقابلے میں، اس آدمی کے مقابلے میں، یہ میں اشارہ کر دیا، آپ اس کی زندگی کو دیکھیے، پڑھیے کہیں. اسی کے مقابلے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فارس کے تھے. اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں ایک نشان تھی نبوت کی، اس کو دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. آپ سوچئے کہاں فارس اور کہاں مکہ مدینہ، وہاں آتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ہدایت کی تلاش. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی بنے کہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہے. اب سوچئے اہل بیت میں سے، تو یہ دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی ہدایت کی تلاش کرتا ہے، ایک آدمی ہدایت کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں جو سمجھا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین ہے میں اپنی سمجھ اس میں تولوں گا. یہیں سے انسان گمراہ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے بہت مختصر اشارہ کیا اس آیت کریمہ کی. آپ جتنوں تفسیر پڑھیں گے تو بہت کچھ باتیں معلوم ہوگی. ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں. اس حدیث کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے. لیکن میں منذری کی الترغیب و ترہیب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار ہو جاؤ کہ تم سے پہلے کے جو اہل کتاب تھے یعنی یہود اور نصارہ، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے. یہ بچپن سے حدیث سنتے ہیں، لیکن ایک اس میں کچھ الفاظ جو زیادہ ہیں وہ بہت کم لوگ سنے ہیں.
इसी वजह से इस हदीस को मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि अहले किताब 70 पर 2 फ़िरक़ों में बढ़ गए। व इन्न हादिहिल उम्मा, और ये उम्मत तुफ़रक़ु अला 73, 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। 70 फ़िन्नार, 72 फ़िन्नार, 70 पर 2 जहन्नम में चली जाएगी। व वाहिदुन फ़िल जन्ना, और एक जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगी। वही अल जमाआ, यही जमाअत है, यही अल जमाअत है। और कहते हैं कि उसी रिवायत में इतना ज़्यादा है, इन्नहु लयख़रुजु फ़ी उम्मती अक़वामुन ततजारा बिहिमुल अहवा कमा यतजारल कलबु बिसाहिबी ला यबक़ा मिन्हु इरक़ुन वला मिफ़सलुन इल्ला दख़लहु। ये बात अच्छी तरह से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम निकलेगी कि उनके अंदर ख्वाहिश परस्ती, बिदआत इतना ज़्यादा घुस जाएंगे, बिदआत उनके अंदर इतना ज़्यादा घुस जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल अहवा, ख्वाहिश परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, बिदअतें इतनी ज़्यादा घुस जाएंगी। कमा यतजारल कलबु बिसाहिबिही, जिस तरीके से कुत्ता काट लेता है और कुत्ता काट लेने से उसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। जैसे बावला कुत्ता, पागल कुत्ता किसी को काट ले और उसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ला यबक़ा मिन्हु इरक़ुन, कोई भी रग, वला मिफ़सलुन, कोई भी जोड़ बाकी नहीं रहता, इल्ला दख़लहु, मगर वो जहर फैल जाता है। इसी तरीके से उनके अंदर बिदअतें पूरी फैल जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कुरान मजीद की आयत और हदीस को आप मिलाएं और समझें और गौर करना चाहिए कि हमको बिदआत से कितना बचना चाहिए, बिदआत और खुराफात और ख्वाहिश परस्ती से कितना बचने की ज़रूरत है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन्नती गिरोह और जन्नती जमात का जिक्र किया, और क्या क्या, इसी उम्मत में एक ऐसी कौम पैदा होगी जिनके अंदर ख्वाहिशात और बिदअतें ऐसे खतरनाक फैलेंगे जैसे कि कुत्ता काट लेने से जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है, पूरा जिस्म में फैल जाता है। तो यहाँ अहवा का जिक्र आया। इसी वजह से इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह शरह सुन्ना के अंदर क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं इदा राअयत अर्रजुला यजलिसु मअ अहलिल अहवाई फहजुरहु वअर्रिफहु फ़इन जलस मअहु बअद मा अलिम फत्तक़िह व इन साहिबा इन्नहु साहिबु हवा। कहते हैं कि जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो किसी हवा परस्त बिदाती के साथ बैठ रहा है, किसी हवा परस्त बिदाती के साथ बैठ रहा है, फहजुरहु, तो तुम बचो उससे। देखिए बिदाती के पास जो जा करके बैठ रहा है, उस आदमी को तूने देख लिया, तो उस आदमी जो बिदाती नहीं है लेकिन जाकर बैठ रहा है, उससे भी बचो, उससे भी बचो। और क्या करो, वअर्रिफहु, और उसको बताओ कि वो बिदाती है, क्यों बैठ रहे हो। फ़इन जालसा माहू, बताने के बाद भी अगर बैठ रहा है, बाद मा अलिमा, जान गया कि वो बिदाती है फिर भी बैठ रहा है, तो फत्तक़िहु, उससे बचकर रहो। क्यों बचकर रहो, व इन्नहु साहिबु हवा, क्योंकि वो भी बिदाती ही है, वो भी बिदाती ही है। तो देखिए अब सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और उसकी शरह उलमा इकराम ने कितनी बेहतरीन बिल्कुल उसी तरह किया। एक आदमी को अगर कुत्ता काट ले तो आप जाएंगे उसके पास, कोई भी आदमी जाएगा, किसी को कुत्ता ने काट लिया है तो कोई एक अच्छा इंसान जिसका अकल है वो जा करके बैठेगा, क्योंकि कुत्ता काट लेते हैं तो क्या होता है जानते हैं आप। देखिए इसके बारे में जो उलमा ने शरह लिखा है, इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने अन्निहाया फ़ी गरीब हदीस उनकी किताब है, उसके अंदर हदीस के जो अल्फाज हैं उस लफ्ज़ का क्या माना होता है उन्होंने ज़िक्र किया है। उसी किताब में उन्होंने कहा कि ये जो कलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलब कुत्ता का काटना, कहते हैं कि ऐसी बीमारी है जिससे पागलपनी आ जाती है, जिससे पागलपनी आ जाती है। और इसी तरीके से कुत्ते को जो आदमी काट लेता है, पागलपनी आ जाता है, सेम इसी तरीके से बिदाती की हालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। अब एक आदमी जो पागल हो गया है और उससे खतरा है, एक जिसके पास अकल है, वो जाएगा उसके पास बैठेगा? नहीं बैठेगा।
नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर उसके पास बैठेगा तो हो सकता है कतर डाले उसको भी। क्योंकि आप देखेंगे, हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस आदमी को कुत्ता काट लेता है उसकी ऐसी खतरनाक हालत हो जाती है कि वो भूखना शुरू करता है, भूखना शुरू करता है, दौड़ता है, नोचता है किसी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हल्के में मत लीजिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हल्के में ना लें और इमाम बरबारी रहमतुल्लाह अलैह की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मिलाइए कि इमाम बरबारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों इतनी बड़ी बात कहा कि जो आदमी किसी बिदअती के पास बैठता है तो उनसे बचकर रहो, बताओ कि वो बिदअती है। फिर भी अगर नहीं बच रहा है, फिर भी जा करके बैठ रहा है, तो समझ लो कि वो भी बिदअती है, उसका असर इसके अंदर आ गया है, उसका असर इसके अंदर आ गया है। तो इन बातों को हमें गौर करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तोहफतुल अहवज़ी उनकी किताब है, तिरमिज़ी की शरह, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस में कहा है कि मेरी कौम में कुछ लोग निकलेंगे और इनके अंदर इतनी बिदातें आम हो जाएंगी जैसे कुत्ते का काटने का जहर, तो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि पहले ही बतला दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बतला दिया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और कहते हैं कि ऐसा हुआ है, उम्मत में ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो बहुत ये खतरनाक बात है कि बिदातियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा मिसाल दिया और अल्लाह ने सेम वही मिसाल दिया, अल्लाह ताला ने सेम वही मिसाल दिया। तो कहते हैं कि एक अक्लमंद इंसान को, एक अक्लमंद इंसान को अपना सही अकीदा बचा लेना चाहिए, अपना सही अकीदा बचा लेना चाहिए। यहाँ एक आखिरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक जमात क्या होगी, जन्नत में जाएगी। ठीक है, इसकी बहुत सारी शरहें दुनिया में आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह कहा है कि एक जमात हक़ पर रहेगी। उन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हुए सुना है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हुए सुना, इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो कह रहे थे कि इससे मुराद अहलुल हदीस हैं, इससे मुराद अहलुल हदीस है, जो एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी उससे मुराद अहलुल हदीस हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हम अहले सुन्नत वल जमात में से अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना, अंसारुस सुन्ना, फ़िरक़तुन नाजिया, अल जमा, एक ही लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो हमको कैसे मालूम होगा कि हम अहले सुन्नत में से हैं कि नहीं हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमको कैसे मालूम हो जाएगा? इस बात को उलमा इकराम ने जिक्र किया है। इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब शरह एतक़ाद अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे की शरह एक किताब लिखा है, शरह एतक़ाद अहले सुन्नत वल जमाअत, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह। उसके अंदर सहल बिन अब्दुल्ला अत-तुस्तुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जिक्र किया है कि उनसे कहा गया, मता यअलमुर रजुल अन्नहु अला सुन्नत वल जमा, एक आदमी को कैसे मालूम होगा कि वो सुन्नत पर है और जमात पर है, सुन्नत पर है और जमात पर है, सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है और जमात पर, जमात हक्का पर है, उसको कैसे मालूम हो जाएगा? तो उन्होंने कहा, कुछ इशारा किया, कहा कि ये बातें अगर हो तो समझ लेना चाहिए। उन्होंने तकरीबन 9-10 चीज़ें जिक्र किया। कहा कि पहली बात कहा, ला यत्रुक अल जमाआ, पहली बात यह है कि जमात ना छोड़े। पहली पहचान क्या है? जमात ना छोड़े, मुसलमानों की जो जमात है उस जमात से अलग ना हो जाए। आजकल क्या करते हैं, थोड़ी सी अनबन हुई जमात को छोड़ देते हैं, जमात से निकल जाते हैं। ये खारजियों का अकीदा है, याद रखिए, ये खारजियों का अकीदा है। इससे पहले मैं तफसील से बताया था कि और जमात बोले तो एक हाकिम जो होते हैं, और जहाँ हाकिम नहीं है वहाँ किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग, वही अलजमा है। हाकिम बोले तो एक जो पूरे मुल्क का बादशाह, वो असल में हाकिम है, इस्लामी हाकिम, मुसलमान मुल्क में जो बादशाह होते हैं उनके अंडर पर रहना, तो उससे अलग नहीं होना, ये खारजियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत को तोड़ करके हुरूरिया में लोग खारजी जमा हो गए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, जमात से अलग हो गए। तो याद रखिए, उसी वक्त हक पर होंगे जब जमात को छोड़ेंगे नहीं। और इतनी बात याद रखिए,
اس سے مراد بہت سارے علماء نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی لکھا ہے، کیونکہ خارجیوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کی پہچان میں سے، جیسے کہ میں عشاء کے بعد کچھ بھائیوں کو پڑھاتا ہوں تو اس میں ایک بات آئی کہ جمعہ اور جماعت کا چھوڑنا خارجیوں کی پہچان تھی اس وقت۔ جمعہ اور جماعت کا چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا چھوڑنا یہ خارجیوں کی پہچان تھی۔ اسی وجہ سے اپنے اندر غور کر لینا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا ہماری حالت ہے۔ تو یہ بہت ڈینجر ہے یہ۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ولا یسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دوسری بات پہچان سنت اور جماعت پر رہنے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دے۔ آج دیکھیے اس پر تولیے تو عجیب عجیب لوگ نکلتے ہیں، جیسے سلمان ندوی نے کچھ دن پہلے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کیا اور کہا کہ ان کے گھر میں شراب بکتا تھا، ان کے گھر میں صحابہ کو قتل کیا جاتا تھا لیکن روکتے نہیں تھے۔ اب سوچئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا، شیعوں نے الزام لگایا اور احناف نے الزام لگایا تو یہ کہ غیر فقیہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر کلام کیے، ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری بات کہہ رہے ہیں یخرج علی ہذہ الامہ بالسیف لا یخرج علی ہذہ الامہ بالسیف، اس امت پر تلوار کے ذریعے سے خروج نہ کرے، تلوار کے ذریعے سے خروج نہ کرے۔ جیسے آج کل اس کا دوسرا طریقہ بوم باندھ کر کے بلاسٹ ہو جانا، بوم باندھ کر کے بلاسٹ ہو جانا۔ یاد رکھیے خارجیت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ اور بن لادن خارجیوں کا پکا سردار تھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہیرو تھا، پکا وہ خارجیوں کا بڑا سردار تھا، اور اس کی تعلیم ہی یہی تھی کہ بلاسٹ ہو جانا، یہ ہو جانا۔ اور یہ ہندوستان میں بھی ایک اجمل قصاب یا کیا کر کے آیا تھا، یہ سب خارجیوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھیے ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس زمانے میں تلوار نکال کر کے قتل کر دیتے تھے، کئی صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو بھی قتل کیا، اور اس زمانے میں اس طریقے سے طریقہ صرف بدل گیا ہے، بس وہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور ایک بات یہ ہے کہ لا یکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلائے نہیں، تقدیر کو جھٹلائے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تقدیر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر ادھر کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھیے تقدیر کے بارے میں دو فرقے نکلے ہیں اسلام میں، ایک قدریہ اور ایک جبریہ، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ نے کہا تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جبریہ نے کہا سب کچھ تقدیر سے ہوتا ہے، ہم شراب بھی پیتے ہیں تو تقدیر ہی سے ہوتا ہے، ہماری کچھ غلطی نہیں ہے۔ یہ جبریہ نے کہا کہ اگر ہم زنا بھی کریں تو ہماری کچھ غلطی نہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ کر رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ جبریہ نے کہا۔ اور قدریہ نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں، بس کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں نہیں لکھا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، ایسے یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنا یہ اہل سنت والجماعت سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں ولا یشک فی الایمان، ایمان میں شک نہ کرے، ایمان میں شک نہ کرے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان وغیرہ جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل یہ جو سائنسی دنیا ہے اس میں بہت سارے لوگ شک شبہات میں پڑھ کر کے اسلامی سے نکل رہے ہیں، اور خاص کر کے سائنس پڑھنے والے، فلسفہ پڑھنے والے بہت نوجوان نکل جا رہے ہیں، اور ایکس مسلم نہ کیا کیا ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان میں شک کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ولا یمارا فی الدین، دین کے معاملے میں بغیر کسی ضرورت کے حجت بازی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ بیٹھ گئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، سامنے والے کو معلوم ہے کہ بدعتی ہے، پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ مناظرہ کریں گے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ضرورت پڑے گی تو مناظرہ کریں گے علماء کو بلا کر کے، ایسے جیسے تیسے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں بیٹھ کر کے چلو مناظرہ کھیلتے ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا کتنوں بدعتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں ان کے اندر حق ہو اور اس چیز کو اندر ڈال دیا اور آپ اس میں چلے جائیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے ضرورت پڑتی ہے تو مناظرہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی علماء مناظرہ کرتے ہیں۔ جو 100 آدمی کر کے مناظرہ کر کے کتنے لوگ پھنس چکے ہیں، یہ انجینئر مرزا علی کے ہاتھ میں، اور اسی طریقے سے قادیانی کے ہاتھ میں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پھنس چکے ہیں۔ ویسے نہیں کرنا بلا ضرورت۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ولا یترک الصلاۃ علی من یموت من اہل القبلۃ بذنب،
کہتے ہیں کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے جو اہل قبلہ ہے مر گیا، گناہ گار تھا، اس کے جنازے کی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی جنازے کی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ خارجیوں کا اور معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر مانتے تھے، اسی وجہ سے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتنوں گناہ گار ہو، شرک کفر نہیں کیا ہے، بدعت مکفرہ نہیں کیا ہے، تو اس کے پیچھے نماز، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی چوری کیا تھا، زنا کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ پھانسی بھی لگا لیا تھا، تو پھانسی لگا لیا ہے تو اس وقت کے بڑے علماء یا گاؤں کے بڑا ذمہ دار کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن عام آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے، عام آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ولا یترک المسح علی الخفین، اور موزے پر مسح کرنے کو نہ چھوڑے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اہل سنت والجماعت ہی سے خارج ہے۔ اور کس نے انکار کیا جانتے ہیں؟ شیعہ نے اس کا انکار کیا، وہ نہیں مانتے ہیں کہ موزے پر مسح ہے۔ اور بہت سارے عجیب بات ہے کہ احناف نے بھی کیا کیا، صرف چمڑے کے موزے ہی پر مسح کرنا، ایسے کپڑے کے موزے پر مسح نہیں کرنا، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی بہت خطرناک خرابی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کہتے ہیں ولا یترک الجماع خلف کل وال جار او عدل، کہتے ہیں ہر، چاہے وہ انصاف کرنے والا ہو یا ظلم کرنے والا ہو، بادشاہ ہے، ولی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو چھوڑنا نہیں، نماز پڑھنے کو چھوڑنا، چاہے کتنوں ظلم کر رہا ہے، کتنوں گناہ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے پیچھے نماز کو چھوڑ دے رہا ہے تو وہ خارجی ہے، اس کے پیچھے نماز کو چھوڑ دے رہا ہے تو خارجی ہے۔ کل ہی میں نے ایک آڈیو بتلایا تھا، جماعت المسلمین کا امیر حج کرنے کے لیے گیا تو اسے پوچھا گیا کہ آپ لوگ حج کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ مل کر کے اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا اپنا خطبہ ہوتا ہے، وہ تو امام حرم حنبلی ہے، اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں؟ تو یاد رکھیے جماعت المسلمین بھی اسی کیٹیگری کے ہیں، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے بہت ساری باتوں میں بہت نکل چکے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سعودیہ کے حاکم یا حرم کے امام وہ سب گمراہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بہت یہ سب باتیں اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول میں سے اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے نکلتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج ہو سکتا ہے، اور نکل کر کہاں جا کر پھنس جائے گا معلوم نہیں۔ تو یہ سب باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم لوگ کتاب سے کچھ اور باتیں پڑھتے ہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بجلی نہیں ہے تو دیکھیے، ہم لوگ مسائل الجاہلیہ میں تقریباً 14 مسئلے پڑھے تھے، یہاں 15واں مسئلہ ایک پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اعتذارہم عن قبول الحق بعذر باطل، حق کو قبول کرنے سے کوئی بہانہ، باطل بہانہ مار کر کے حق کو قبول نہ کرنا، یہ اس زمانے میں جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی۔ حق ہے، سب کچھ دیکھ لیا، مان لیا، لیکن کچھ باطل بہانہ، جھوٹ موٹ کے بہانہ مار دیا تاکہ حق کو قبول نہ کرے، یہ جاہلیت ہے اور آج بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعتذارہم عن اتباع ما آتاہم اللہ بعدم الفہم، دیکھیے وہ عذر کیا تھا، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، تعجب لگے گا، اور آج لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا اس کی اتباع کرنے سے عذر پیش کر دیتے تھے، اور کیا عذر تھا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی کہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی جو جاہلیت میں تھے، یہود اور نصارہ بھی اور مشرکین مکہ بھی، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی عذر پیش کیا، اور آج بھی باطل لوگ یہی کہتے ہیں۔ کسی آدمی کو آپ بیٹھائیے، سناتے رہیے، 1 گھنٹہ سمجھائیے، بعد میں پتہ چلا کہ سو گیا ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ سو گیا ہے، پوچھیں گے کیا سنے؟ تھوڑا نیند آ گئی تھی، ایسے کہہ دیں کہ نہیں کہتے؟ یا تو آپ کی بات تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی ہے، اتنی سیدھی سیدھی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ درگاہوں پر مت جاؤ، ایسے نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، چھلا مت پہنو، اتنی صاف صاف باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن کہہ دیا جائے کہ
وہاں مردہ کی ہڈی لاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی ان کی. تو ایسے یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے. اور کیسے کیا دلیل ہے آپ دیکھیے، سورہ البقرہ پڑھیے آیت نمبر 80 پر 7 اور 80 پر 8 پڑھیے. کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ یہ سزا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بات پہلے دماغ میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا تھا، اسی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 پر 7 اور 80 پر 8 పడియే. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మేము మూసాకు గ్రంథం వసిగాం, అతని తర్వాత కూడా ప్రవక్తలను పంపించాం. ఇంకా మేము మరియం కుమారుడైన ఈసాకు స్పష్టమైన నిదర్శనాలు ఇచ్చాము. రూహుల్ ఖుదూస్ ద్వారా అతని సహాయం చేశాం. అయితే ఏ ప్రవక్త అయినా మీ మనసులోకి నచ్చని విషయాలు మీ వద్దకు తెచ్చినప్పుడల్లా మీరు అహంకారం ప్రదర్శించారు. వారిలో కొందరిని ధిక్కరించారు, మరికొందరిని హతమార్చడం కూడా చేశారు. 88. మా హృదయాలు గలేబుల్లో చుట్టబడి ఉన్నాయని వారంటున్నారు. కాదు, వారు తిరస్కార వైఖరి మూలముగా అల్లాను వారిని ధూత్కరించాడు కనుక వారు విశ్వసించేది బహుస్వల్పం. आखिर में क्या कहे उन लोगों ने कि हमारे दिल पर्दे में पड़े हुए हैं, हमारे दिल पर्दे में पड़े हुए हैं. आयत के उसमें 80 पर 7वीं आयत में क्या है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार रसूलों को भेजता गया. ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसा बिन मरियम है उनको भी खुली निशानी दिया और रूहुल कुदुस के ज़रिए से उनकी ताईद सपोर्ट किया. जब उनके पास रसूल आए, तुम्हारे पास रसूल आए, ऐसी चीज़ जो तुम्हारे दिल के तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुम्हारे ख्वाहिश के ख़िलाफ़ थी, तो तुमने क्या किया? तकब्बुर किया और तुम्हारे में से एक गिरोह ने झुटला दिया और नबियों को भी कत्ल कर दिया. देखिए क्यों कत्ल कर दिया? उनके दिल की जो ख्वाहिश है उसके मन के मुताबिक उससे बराबर की चीज़ नहीं लाए. हालांकि उनके मुताबिक लाएंगे ना, अल्लाह ताला के हुक्म से लाएंगे. तो ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया है, आपको मालूम है कि नहीं? ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया उन लोगों ने. क्यों? वही बात है, अल्लाह ताला ने इसी वजह से कहा. और क्या कहा उन लोगों ने? वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, हमारे दिल तो पर्दे में है, हमारे दिल तो पर्दे में है. अल्लाह ताला ने क्या उसके जवाब में क्या कहा? ऐसी बात नहीं जो तुम कह रहे हो, हमारे दिल ये पर्दे में है. असल बात ये नहीं है. बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र और इनकार करने की वजह से लानत किया है. व क़लीलन मा युमिनून, इसी वजह से बहुत थोड़े लोग ईमान लाएंगे. पहले उन लोगों ने कुफ्र किया, इसी की सज़ा ये मिली कि इनको समझ ही में नहीं आ रहा है. इसकी वजह से हिदायत को कबूल करने में रुकावट हो गई, उनकी सज़ा के तौर पर था. उसी तरीके से आप सूरह हूद पढ़िए जो 11 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 90 पर 1 पढ़िए. इसमें तो और साफ है. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఓ షోయబ్ అలైహిస్సలాం, నువ్వు చెప్పే వాటిలో చాలా విషయాలు మాకు అర్థం కావడం లేదు. మేము నిన్ను మా మధ్యలో ఎంతో బలహీనులుగా చూస్తున్నాం. నీ వంశస్థులే లేకపోతే ఈ పాటికి నీపై రాళ్ళు రువ్వి ఉండేవాళ్ళం. మా దృష్టిలో నువ్వు ఘనపాటివి ఏమీ కావు అని వాళ్ళు చెప్పారు. और एक बार पढ़िए, बात समझ में पूरी आ रही है ना? బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఓ షోయబ్ అలైహిస్సలాం, నువ్వు చెప్పే వాటిలో చాలా విషయాలు మాకు అర్థం కావడం లేదు. మేము నిన్ను మా మధ్యలో ఎంతో బలహీనులుగా చూస్తున్నాం. నీ వంశస్థులే లేకపోతే ఈ పాటికి నీపై రాళ్ళు రువ్వి ఉండేవాళ్ళం. మా దృష్టిలో నువ్వు ఘనపాటివి ఏమీ కావు అని వాళ్ళు చెప్పారు. देखिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने क्या कहा? ए शुएब, आपकी बातें हमको समझ में नहीं आती है, हम में सबसे कमज़ोर आपको देख रहे हैं. अगर आपके ख़ानदान और कबीले का लिहाज न होता
तो हम पत्थर से मारकर रजम कर देते। ये शुएब अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि मार कर के रजम कर देते हैं, और हमारे ऊपर तुम्हारा कोई जोर नहीं चल रहा है, हम ताकतवर हैं, ये उन लोगों ने कहा। तो देखिए, ये उन लोगों ने कहा कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों ने कहा कि हमारे दिल पर्दे में हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि असल में ये बात नहीं है। इसी वजह से शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी बातों को कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झुटला दिया, और इस बात को वजाहत किया, बयान किया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ने इनके दिलों पर असल में मोहर मार दिया है, मोहर मार दिया है। और इस मोहर की सबब, ये मोहर क्यों मारा? उनके कुफ्र की वजह से, कुफ्र के और इनकार करने की वजह से मोहर मारा, और मोहर मारने की वजह से ये लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें। तो ये उनका बहाना था, ये उनका बहाना था। तो शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह वजाहत में बहुत सारी बातें लिखे हैं, अहम अहम बातों को ये करते हैं। कहते हैं कि हक़ को कबूल करने से उज़्र पेश करना, बहाना मारना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये जाहिलियत की बातें थी, जाहिलियत के अंदर था। जैसे कि अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में, जब यहूदियों के बारे में ख़बर दिया कि उनके रसूल ने जब उनको बुलाया इस्लाम की तरफ, तो उन लोगों ने कहा हमारे दिल तो पर्दे में हैं, हमारे दिल तो पर्दे में हैं। यानी कहते हैं कि ला यसिलु इलैहा कलामुर रसूल, हमारे दिल तक रसूल की बात पहुँचती ही नहीं है, हमारे दिल तक रसूलों की बात पहुँचती नहीं है, हमारे दिल उनकी बातों पर इत्मीनान नहीं होता है, इत्मीनान नहीं होता है। इस बात को उन लोगों ने दलील बना लिया, दलील बना लिया रसूल के झूठे होने के बारे में, कि जब उनकी बातें हमारे दिल तक पहुंचती नहीं हैं और उनकी बातों पर हम इत्मीनान ही नहीं है, तो वो झूठे हैं। देखिए, वो झूठे हैं, रसूल ही को झूठा कह दिया। इनको बात समझ में नहीं आ रही है, इनको इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो रसूल को ही झुटला दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तो मशहूर तफसीर है उसकी। और दूसरी तफसीर एक ये भी है, इसका मतलब ये है कि जो दिल हमारे ढपे हुए हैं, उसका एक मतलब ये है कि हमारे दिल इल्म से भरे हुए हैं, हमारे दिल इल्म से भरे हुए हैं। फलसना बे हुज्जतिन इला कलाम अहदिन, तो हमको किसी दूसरे की बात की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल पहले से हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हम जानते हैं, जानते हैं, हालांकि कुछ नहीं जानता है। वो कहते हैं कुछ बताइए, हाँ हम सुने हैं, 30 साल से अकीदा पढ़ रहे हैं, 30 साल से अकीदा पढ़ रहे हैं, लेकिन अकीदे की बात बोलिए तो कहेगा कि नहीं बहुत सख्ती कर रहे हैं आप, लोगों पर बहुत सख्ती कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये वो लोग कहे कि हमारे दिल भरे हुए हैं, इल्म से भरे हुए हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये उनका गुमान था, ये उनका गुमान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुमान को तोड़ दिया, उनका रद्द किया कि सबब ना समझने की ये है कि उन लोगों ने कुफ्र किया और इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने दिया, उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने दिया। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह एक बहुत बेहतरीन बात कहते हैं, फ़मन लम यक़बलिल हक़्क़ इब्तलाहुल्लाहु बिल बातिल, जो आदमी हक़ को कबूल नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बातिल में उसको फंसा देता है, मुब्तला कर देता है, बातिल में उसको मुब्तला कर देता है। क्योंकि याद रखिए दो ही चीज़ है, हक़ और बातिल, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। जो आदमी हक़ को कबूल ना करे वो बातिल में फंस जाता है। इसी वजह से कहते हैं जो आदमी हक़ को कबूल नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बातिल में क्या करता है, मुब्तला कर देता है। वसारा बअद ज़ालिका ला यक़बलुल हक़्क़, वो बंदा अब उसके बाद ऐसा हो जाता है कि हक़ को कबूल ही नहीं करता, हक़ को अब कबूल ही नहीं करता है। क्यों नहीं कबूल करता? कहते हैं लिअन्नहु यफ़सुदु क़ल्बुहु, क्योंकि उसका दिल ही बिगड़ चुका है, उसका दिल ही अब बिगड़ चुका है, वलियाज़ु बिल्लाह। और इसको समझाने के लिए एक आयत पेश करते हैं, सूरह अन-निसा खोलिए, जो 4 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 160 और 160 पर एक पढ़ी। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. యూదుల దుర్మార్గం వల్ల వారికి ధర్మసమ్మతముగా ఉన్న అనేక పరిశుద్ధ వస్తువులను మేము వారి కోసం నిషేధించాం. వారు ఎంతో మందిని దైవ మార్గం నుంచి అడ్డుకోవడం వల్లను. 161 నిషేధించబడిన వడ్డీని పుచ్చుకోవడం వల్లను, జనుల సొమ్మును అన్యాయంగా స్వాహా చేయటం వల్లను వారికి ఈ దుర్గతి పట్టింది.
వారిలో అవిశ్వాసులుగా ఉన్న వారి కోసం మేము బాధాకరమైన శిక్షను సిద్ధం చేసి ఉంచాము. देखिए यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो लोग यहूदी बने उन लोगों ने हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया, अपने ऊपर हराम कर लिया, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको हलाल किया था। और उनके इसी जुर्म की वजह से और अल्लाह के रास्ते से ज़्यादा रोकने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे चीज़ों जो हलाल थी अल्लाह ताला ने उनको हराम कर दिया। और वो लोग क्या करते थे, रिबा सूद लिया करते थे, जिससे वो रोके गए थे। और लोगों के माल को बातिल तरीके से खाना ये उनका जुर्म था, ये उनका जुर्म था। इसी वजह से बहुत सारी हलाल चीज़ भी अल्लाह ने हराम कर दी। कुछ लोगों की गलती पूरे लोगों को मिल गई, पूरे लोगों को मिल गई। तो इसी वजह से याद रखिए, एक अल्लाह और उसके रसूल की बात आ गई तो फौरन कबूल करना, वरना लेट करेंगे, बंद करेंगे और कहेंगे अच्छा देखेंगे, ये करेंगे, अल्लाह ताला महरूम कर देगा, अल्लाह ताला महरूम कर देगा। और फिर दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा, दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि दरअसल ऐसे लोगों के दिल बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि कैसे बिगड़ते हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन है, शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़ुल्लाह कहते हैं कि ज़मीन है, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने वो तासीर रखा है कि पौधा उगा है, लेकिन जब ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, नमकीन हो जाती है, दलदली हो जाती है, दलदली सी हो जाती है, तो कुछ भी उसमें लगाइए अब नहीं उगते हैं, ज़मीन से कोई पौधा नहीं उगता है। तो इसी तरीके से जब दिल बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिल को फितरत पर पैदा किया है, लेकिन जब दिल बिगड़ जाते हैं ख्वाहिशात वगैरह से, तो इस काबिल दिल नहीं रह जाता है कि हक़ को कबूल करे, हक़ को कबूल करे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी शुएब अलैहिस्सलाम को कहा, हालांकि शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़ुल्लाह कहते हैं कि नबियों में सबसे फसीह कलाम शुएब अलैहिस्सलाम की थी। फसीह यानी जिनकी बातें समझ में आती, बल्कि नबियों में ख़तीब वही थे, ख़तीब जिनको मुक़र्रिर कहते हैं ना, तो ख़तीब कहते हैं कि बेख़तीबिल अंबिया, नबियों के ख़तीब थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। और उनकी ज़ुबान में फसाहत और बलागत थी, बात लोगों को समझ में आती, ऐसे उनकी ज़ुबान थी। लेकिन फिर भी उनके कौम ने क्या कहा कि हमको समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों कहा, शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को बिगाड़ दिया था, उनके दिलों को बिगाड़ दिया था। और यही बनु इसराइल में भी इसी तरीके से हुआ। और कहते हैं हादिही सुन्नतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। अन्ना मन तकब्बर अनिल हक़, जो आदमी हक़ से तकब्बुर करता है, लम यक़बलहु, और उस हक़ को कबूल नहीं करता है, जब उस पहुँच गया फिर भी कबूल नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को बिगाड़ देता है, सज़ा के तौर पर सज़ा देने के लिए उसके दिल को बिगाड़ देता है। अब आदमी हक़ नहीं कबूल करता है। और कहते हैं यही बात कुफ़ार कुरैश ने भी किया। सूरा फुस्सिलत पढ़िए, जो 40 पर 1 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 5 है। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. వారిలా అన్నారు, నువ్వు దేని వైపుకు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నావో దానికి సంబంధించి మా హృదయాల్లో తెరల్లో ఉన్నాయి, మా చెవులలో భారం ఉంది, నీకు మాకు మధ్య ఒక అడ్డు తెర ఉంది, కాబట్టి నీ పని ఏదో నువ్వు చేసుకోపో, మా పనిని మేము చేసి తీరుతాము. देखिए उन लोगों ने क्या कहा कि हमारे दिल जो है, हमारे दिल पर्दे में है, हमारे दिल पर्दे में है और कानों में बहुत भारी बोझ की तरह लग रहा है, कान में भारी बोझ की तरह लग रहा है। और हमारे और आपके बीच में एक पर्दा है, हमारे आपके बीच में एक पर्दा है। तो एक काम करते हैं, फ़अमल इन्नना आमिलून, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ये मुशरिकीन मक्का ने, कुरैश ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी बात तो ऐसे है, हमारे दिल पर्दे में है, आपकी बातों से हमको बोझ की तरह लग रहा है, आप और हमारे दरमियान एक पर्दा है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़ुल्लाह कहते हैं कि तमाम काफिरों का यही एक ही तरीक़ा है, ये तरीक़ा है।
ये रसूलों की दावत के मुकाबले में अपनी बात को आड़ा बना करके पेश किए कि हमको आपकी बात समझ में नहीं आती, हमको आपकी बात समझ में नहीं आती है। तो कह रहे हैं शेख सालेह अल फौज़ान, हल हादा लिक़ुसूर फ़ी बलाग़ि रसूल, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात पहुंचाने में कसूर था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहुंचा दिया? क्या कोई कह सकता है? नहीं। कहते हैं लेकिन कसूर उनकी थी, कसूर उन लोगों की थी जिनके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, वो अपने आप को तैयार नहीं किए, वो अपने आप को तैयार नहीं किए और इससे हट गए और बहाना क्या मारे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत सारे लोग इसी तरह करते हैं, इसी तरह कहते हैं। आप उनको साफ साफ हदीस बतलाई, साफ साफ हदीस बतलाई, कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सज़ा के तौर पर है, याद रखिए। इसी वजह से आप देखेंगे इस दौर में भी आपको मिसाल मिलेंगी। मैं पहले भी एक मरतबा कहा था, बहुत सारे मदरसों में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी सब पढ़ाते हैं। उसमें इन तमाम किताबों में रफ़ुल दीन की हदीस पढ़ते भी और पढ़ाते भी, गुज़रती है, लेकिन पढ़ाने वाले को भी तौफीक नहीं मिलती है और बच्चे जो पढ़ते हैं उस हदीस को सुनते हैं उनको भी तौफीक नहीं मिलती है, क्योंकि पहले ही उस दिमाग में ये कर लिए कि नहीं हमको ये ऐसा है वैसा है करके। एक बात पहले ही अगर इनकार कर दिए तो हो सकता है कि दोबारा ज़िंदगी भर आपको तौफीक नहीं मिलेगी, दोबारा ज़िंदगी भर तौफीक नहीं मिलेगी। इसी वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो आमन्ना व सद्दक़ना, वो कह लेना चाहिए कि हम ईमान लाए, उसकी तस्दीक किए और इताअत करना चाहिए। कम से कम दिल में ये करना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, हम इसको कबूल करते हैं। तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह देगा, और ताकत नहीं है तो अलग बात है, लेकिन समझ में नहीं आना, ये नहीं आना, ये होना, ये ख़तरनाक सज़ा बन जाती है वो चीज़। ये जाहिलियत की थी। उसी तरीके से जाहिलियत के मसाइल में से एक मसला जो 16वां मसला था वो ये है कि कहते एतियाज़ुल यहूद अन तौरात बिकुतुबि सह्र, कि यहूदियों ने अल्लाह ताला की किताब जो उनको मिली थी तौरात और इंजील वगैरह, इसको बदल दिया और उसके मुकाबले में क्या किया, जादू की किताब पढ़ना शुरू किए, जादू की किताब पढ़ना शुरू किए। तो याद रखिए हमारे पास अल्लाह का कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, इनको छोड़ कर के अगर हम महाभारत, रामायण, बाइबिल ये वो पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कुरान समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहाँ कहाँ फंसे रहेंगे और नमाज को हल्का समझ लेंगे, नमाज को हल्का समझ लेंगे जो इस्लाम का दूसरा रुकन है, जमात के साथ नमाज छोड़ना, ये वो, इतना खराबी आ जाएगी, लेकिन आप उसी को इस्लाम समझेंगे, उसी को इस्लाम समझेंगे। आप देख लीजिए तजर्बा करके, ऐसा होता है। तो शेख फरमाते हैं कि एतियाज़ुहुम अम्मा अताहुमुल्लाहु बिकुतुबिस सिहर, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो उनको किताबें दिया था उनको बदल दिए। किस चीज़ से बदले? जादुई किताब से बदल दी, उसको हटा दिए और जादू वाली किताब को पढ़ना शुरू किए, जादू वाली किताबों को पढ़ना शुरू किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा ही जिक्र किया है। आप देखिए सूरह अल बकरा, आपको ये बात समझ में आएगी। सूरह अल बकरा जो दूसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 101 और 102 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. వారి వద్దకు వారి గ్రంథాన్ని నిజమని ధృవీకరించే ప్రవక్త అల్లాహ్ తరపు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ గ్రంథంలోని ఒక వర్గం వారు దైవ గ్రంథాన్ని అసలు దాని గురించి ఏమీ తెలియని వారుగా వెనుక పడేశారు. 102 వారు సులైమాను అలైహిస్సలాం రాజ్యములోని శైతానును అవలంబించిన విషయాలు వెనుకపడ్డారు. అసలు సులైమాను అలైహిస్సలాం ఎన్నడూ అవిశ్వాసానికి ఒడిగట్టలేదు. ఆ అవిశ్వాస పోకడ అసలు శైతానులదే. వారు ప్రజలను చేతబడిని నేర్పేవారు. వారు బాబిలోనియాలోని హారూత్, మారూత్ అని ఇద్దరు దైవదూతల్లో అవతరింపజేయబడిన విద్య వెంట పడ్డారు. మేము ఒక పరీక్ష వంటి వారం, నువ్వు మాత్రం అవిశ్వాసానికి పాల్పడకు
అని స్పష్టముగా చెప్పనంత వరకు వారు ఇద్దరు ఎవరికి ఆ విద్యను నేర్పేవారు కూడా కాదు. అయినప్పటికీ జనుల్లోని వారి దగ్గర భార్యాభర్తలను విడగొట్టే విద్యను నేర్చుకునేవారు. ఎంత చేసినా వారు అల్లాహ్ అనుమతి లేకుండా ఏ చేతబడి ద్వారా ఎవరికి ఎలాంటి కీడు కలిగించలేరు సుమా. తమకు నష్టం తప్ప ఏ మాత్రం ప్రయోజనం చేకూర్చని దానిని వారు నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ విద్యను కొనుక్కున్న వారికి పరలోకములో అక్కడి సుఖ సౌఖ్యాలలో ఎలాంటి భాగం లేదన్న సంగతి వారికి సైతం తెలుసు. ఎంత నీచమైన వస్తువుకు బదులుగా వారు తమను తాము అమ్ముకుంటున్నారో వారికి తెలిస్తే ఎంత బాగుండు. देखिए इसमें क्या अल्लाह ताला ने कहा कि उनके पास जब अल्लाह की तरफ से रसूल आए, उनके पास जब अल्लाह की तरफ से रसूल आए, उनके पास जो किताबें थी उसकी तस्दीक करने के लिए तो उन लोगों ने क्या किया, नबाज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह, जिन लोगों को अल्लाह ने किताब दिया था उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब ही को फेंक दिया, पीठ पीछे फेंक दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, और ऐसे हो गए जैसे कि जानते ही नहीं है, ऐसे हो गए जैसे कि जानते ही नहीं है, और पीठ पीछे फेंक दिया अल्लाह की किताब को। और उसके बदले में क्या किया, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में जो शैतान पढ़ते थे उसके पीछे वो लोग पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। देखिए अल्लाह की किताब को छोड़ दिए तो जादुई किताब के पीछे पड़े कि नहीं, पीछे पड़े। तो और अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, शैतान ने कुफ्र किया। ये क्यों कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाता था, लोगों को जादू सिखाता, ये शैतान सिखाते थे। अब सोचिए कि अल्लाह ताला ने उनको किताबें दिया उन लोगों को, लेकिन अल्लाह की किताब को छोड़ दिए और कहाँ पीछे पड़े, जादुई किताब, शैतान जो पढ़ रहा था उस किताब। और उल्टा क्या किए, उल्टा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम असल में जादूगर हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम असल में जादूगर हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से रद्द किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वो कुफ्र नहीं किया, वो तो ये शैतान ने कुफ्र किया लोगों को जादू सिखा करके। तो याद रखिए अल्लाह ताला की दी हुई किताब को छोड़ देना, उसके मुकाबले में जादू वगैरह की टोना टोटके की किताब ले लेना, ये बहुत ख़तरनाक है, ये जाहिलियत की बात है, ये जाहिलियत की बात है। आजकल चमक धमक ज़्यादा, ऐसी बात हो कि कभी सुने नहीं है, ऐसी बात हो कि हवा में कोई उड़ रहा है, ऐसे हो कि कब्र से हाथ निकल गया, ऐसी किताबों को बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। और कुरान मजीद जो हकीकत है उसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। उसकी तफसीर बहुत सारे मस्जिदों में नहीं चलती। अल्लाह का फ़ضل है कि अहलुल हदीस मस्जिदों में कुरान की तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस चलती है, ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में, इसके अलावा कहीं भी जाइए वही उल्टे सीधे किताबें, उल्टे सीधी किताबें, और लोगों का माइंड ख़राब कर देते हैं। तो ये जाहिलियत की बातें हैं और आज भी जाहिलियत है। बहरहाल शरह में एक दो बातें हम लोग पढ़ करके फिर इंशाअल्लाह बात ख़त्म करेंगे। कहते हैं कि यहूदी ने जब तौरात को इनकार कर दिया, कुफ्र किया तौरात के साथ, किस बात का कुफ्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात थी उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात थी, और उनको हुक्म दिया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, ये उनकी किताबों में बात मौजूद थी। इस बात को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इंजील जो उतरा था, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंजील उतरा था, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारत थी, खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया था। सूरा सफ पढ़िए जो 60 पर 1वीं सूरा है, 6 नंबर आयत, सूरा सफ 60 पर 1 सूरा आयत नंबर 6। బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. మరియం కుమారుడైన ఈసా
అలైహిస్సలాం, ఓ ఇజ్రాయిలు సంతతి వారులారా, నేను మీ వైపు అల్లాహ్ తరపున పంపబడిన ప్రవక్తను. నాకు పూర్వం వచ్చిన తౌరాతు గ్రంథాన్ని ధృవపరుస్తున్నాను. నా తరువాత రాబోయే ఒక ప్రవక్త గురించి కూడా శుభవార్త ఇస్తున్నాను. అతని పేరు అహ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అని చెప్పినప్పటి సంగతి కూడా స్మరించదగినదే. తీరా అతను స్పష్టమైన నిదర్శనాలను తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఇది పచ్చి ఇంద్రజాలం అని వారు తేలిగ్గా కొట్టిపారేశారు. अब देखिए पूरी बात इसमें है कि नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है बनु इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ और हमसे पहले जो किताब अल्लाह ताला ने उतारा था तौरात, उसकी तस्दीक करता हूँ और खुशखबरी सुनाता हूँ कि एक रसूल आएंगे, उनका नाम क्या होगा, मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। लेकिन फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, जब बिल्कुल वाज़ेह दलील उनके पास आ गई तो उन लोगों ने कहा हादा सेहरुम मुबीन, ये तो खुली हुई जादू है। तो याद रखिए तौरात और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिफ़ात मौजूद थी। आप उसी तरीके से आप सूरह अल आराफ भी पढ़ सकते हैं, जो 7वीं नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 150 पर 7 पढ़िए, ये बात मिलेगी आपको कि तौरात और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात थी। सूरह आराफ की आयत नंबर 107 पर 150 पर 7। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఈ సందేశహరుణ్ణి నిరక్షరాస్యి అయిన ఈ ప్రవక్తను సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను అనుసరించేవారు కరుణించబడతారు అని ప్రస్తావన తమ వద్ద ఉన్న తౌరాతు ఇంజీలు గ్రంథాలలో లిఖితపూర్వకముగా లభిస్తుంది. ఆ ప్రవక్త మంచిని చెయ్యమని వారికి ఆదేశిస్తాడు, చెడు నుంచి వారిస్తాడు, పరిశుద్ధమైన వస్తువులను ధర్మసమ్మతముగా ప్రకటిస్తాడు, అశుద్ధమైన వాటిని నిషిద్ధంగా ఖరారు చేస్తాడు, వారిపై ఉన్న బరువును దించుతాడు, వారికి వేయబడి ఉన్న సంఖ్యలను విప్పుతాడు. కనుక ఎవరు ఈ ప్రవక్తను సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను విశ్వసించి అతనికి ఆదరువుగా నిలుస్తారో, తోడ్పాటు అందిస్తారో, ఇంకా అతనితో పాటు పంపబడిన జ్యోతిని అనుసరిస్తారో అంటే ఖురాన్ను, వారి సాఫల్యం పొందేవారు. देखिए पूरी बातें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे और क्या करेंगे और मारूफ का हुक्म देंगे, मुनकर से रोकेंगे, हलाल चीज़ को पाक चीज़ को हलाल कर देंगे और जो खबीस चीज़ें होंगी उनको हराम करेंगे, ये पूरी बातें थी। लेकिन ये लोग समझ में गए थे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बच्चे को पहचानते, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। जैसे उमैया इब्न अबी सल्त के बारे में आपको पहले ही कहा था कि वो सब कुछ जानने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी, लेकिन ईमान नहीं लाया। तो इसी तरीके से कहते हैं कि तौरात इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात वगैरह सब लिखे हुए थे, वो लोग जानते थे, लेकिन किताब का इनकार कर दिया। तौरात का उन लोगों ने तौरात ही का इनकार कर दिया, जो चीज़ जानते थे। अल्लाह ने इनको मुब्तला कर दिया, किस बात में? जादुई किताबों में मुब्तला कर दिया। इस बात को नहीं माने तो अल्लाह ताला ने जादुई किताब जो शैतान पढ़ते थे उन किताबों में मुब्तला कर दिया और हिदायत नसीब इनको नहीं हुई। तो इस्तब्दलू अमल शयातीन बेवही रब्बिल आलमीन। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही को बदल दिया और शैतान के अमल को ले लिया। अल्लाह की वही दो ही है, एक कुरान और हदीस। कुरान और हदीस ये दोनों अल्लाह की वही है। एक को वही मतलू कहते हैं और एक को वही गैर मतलू कहते हैं। इस चीज़ को बदल देना गुमराही में पड़ना है। इस चीज़ को छोड़ देंगे, दूसरी चीज़ को पकड़ेंगे तो गुमराही में पड़ जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही को उन लोगों ने बदल दिया तो शैतान के अमल में फंस गए। तो इसी तरीके से जो भी आदमी हक़ को इनकार कर देता है तो बातिल में फंस जाता है। तो आखिर में एक बात यह है कि कज़ालिका कुल्लु मन तरकल हक़। शेख फरमाते हैं कि इसी तरह हर वो आदमी जो हक़ को छोड़ देता है वो बातिल में मुब्तला हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। फल्लज़ी यत्रुकु मिन्हु दावतुर रसूल मिन दावत इला तौहीद। जो आदमी भी रसूलों की दावत को छोड़ देता है, रसूलों ने तौहीद की तरफ दावत दिया, इसको छोड़ देता है। और रसूलों ने क्या दावत दिया?
ایک اللہ ہونے کی طرف دعوت دیا، تو جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ شرک کو رواج دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ لوگ شرک کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ جو توحید کو چھوڑتے ہیں، توحید کے الٹا کیا ہے؟ شرک ہے، تو شرک میں پھنس جاتے ہیں اور لوگوں میں حق کے الٹا توحید کے الٹا جو شرک ہے اس کو رواج دیتے ہیں۔ اور بہت سارے خرافات والے علماء کہتے ہیں، علماء القبورین، قبر پرست علماء یہی کرتے ہیں، بدلا من ان یدعو الی توحید اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دینے کو بدل کر کے قبروں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا تھا، لیکن وہ لوگ باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یدعو الی عبادت القبور، وہ قبروں کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، موت سے تعلق جوڑتے ہیں اور شبہات میں پھنسا دیتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے لوگوں میں اسی شرک بدعات کو رواج دے دیتے ہیں اور اپنا وقت باطل چیزوں میں کھپا دیتے ہیں، مشغول کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے حیدرآباد کا ایک کیا نام ہے اس کا، احمد نقشبندی، اس نے کیا کہا کہ نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی درگاہ میں چلا گیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، تو ایسی حالت ہوگی، توحید کو چھوڑیں گے معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا، معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا۔ یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کی پہچان اور اس کا علم سیکھنے کی توفیق دے، اس کو قبول کرنے، اس کو ماننے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔